I think मामी की खासियत ये है कि I'm very happy कि it's happening in my own city. हमारी I think मुंबई सिटी की शान है इतनी बड़ी festival that has been put together to celebrate cinema. I think that actually it's the first time पहली बार आ रही हूँ मामी के लिए. I think it's something that I needed to lend my support to just be a part of the fraternity, feel a part of the city, feel like a Mumbaiker. And also I think that it's about artists, it's about movies, it's about films, and I think it's just great and everyone's working so hard to put this together. So I'm so happy. करीना, हमने कभी भी बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो कभी भी हमने किसी आर्टिस्ट को जो टू बी मॉम है उसे इतना बिजी नहीं देखा है जितना आपको बिजी देखा. आप फोटो शूट कराती हैं, आप कहीं जाके कुछ इनॉग्रेट करते हैं, मामी फिल्म फेस्टिवल में मतलब पार्टी में आती हैं. मतलब यू हैव सेट अ न्यू स्टैंडर्ड एंड न्यू रूल. No, I don't think so. I think that I don't know. I mean, it's the most normal thing. It's the most beautiful thing, and I think that जैसे you get married, you share your happiness with everyone, and pregnancy is also something that you must share with everybody. It's not that I should, agar if I'm having a baby or I'm pregnant, I should sit at home. It doesn't mean that. I'm a working woman, and I would continue to work all my life. मैंने हमेशा कहा है तो ऐसे कोई एग्जाम्पल कॉन्शियसली सेट करने नहीं गई हूँ, बस ऐसे हो गया है कि आई हैव ऑलवेज कंटिन्यूड माय वर्क. आई लव्ड द फिल्म ऑब्वियसली. ऐश्वर्या की परफॉर्मेंस के बारे में क्या? बहुत बल्कि आई थिंक ऑल एक्टर्स वेदर इट्स रणबीर और अनुष्का और ऐश, आई थिंक एवरीवन हैज डन such a fantastic job in the film, and I think audience is going to love the film. Like, I mean, I think it's Karan's best. करीना, धीरे धीरे वेटिंग आपकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है, उसके बारे में अगर कुछ बताएं कि किस स्टेज में है और किस तरह का रोल है आपका? नहीं, रोल तो this is one of the most glamorous moms. How nice to see you like my darling. But I keep stalking you. I should have come for the opening night, but Nehan said both. I know. I keep getting apologies. Princess K, I'm so sorry. He's too cute. He's lovely, but he's like, you have to go, you have to go. I said, yeah, I'm going. So happy. I said, I'm going only to see Kiran's look. Yeah. Because Kiran is the most stylish. Oh God! I have told them I'm not Tips, doing this. tips नहीं है. Tips ऐसे I want to look like Kiran. क्या देना tips? हाँ? Please. And where is Amir? Solo. आपने बताया कि आपको फिल्म बहुत पसंद आई, परफॉर्मेंस पसंद आए, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई है दिलो इमोशनल को लेकर उसके बारे में कुछ कहेंगे? But I think Mami is the place where we're celebrating cinema. It's about films, movies that we love, that we want to celebrate. I don't think it's a place to talk about controversies, and that's why Mami is a festival which talks about films and different artists, different films. So I don't think we should spoil the mood and talk about something that already has been resolved. अच्छा, वीरा दी वेडिंग के बारे में कुछ बताने वाले हैं? Well, we're very excited about the film. It's going to be India's first kind of typical chick flick, जिसे कहते हैं. And yeah, hopefully it'll be lots of fun and very exciting. And it's all about women power, and of course good-looking people. Karina, one last question, Karina. Because you do so many brand endorsements, your reaction on this. अगर किसी सेलर को अगर ब्रांड एज अ ब्रांड एंडोर्सर निकाल लेते हैं तो क्या उसका पॉपुलैरिटी या स्टार वैल्यू अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दैट? No, I don't think so. I think that I mean, there's enough brands in the market. I think आजकल तो means
a lot of people are endorsing my brands. Tomorrow even like, you know, I mean, किसी कोई भी हो, if somebody calls up, I think like everybody is endorsing 20 brands. ऐसे कोई brand नहीं है कि अगर आइसक्रीम है तो मार्केट में 10 आइसक्रीम है, तो ना एक आर्टिस्ट 10 आइसक्रीम थोड़ी कर सकता है. And let me tell you, every actor is endorsing every brand. You calling me for any brand, I'll endorse your brand. Thank you so much. फेस्टिवल की स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती है, तो आपसे जानना चाहिए वो ऐसी कौन सी एंगल थी जिन्हें देखकर आप बड़े हुए? भाई साहब, मैं इस वक्त फिल्म नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फेस्टिवल जो है बेहतर से बेहतर होता जा रहा है. मैंने शेड्यूल देखा है, बहुत अच्छी फिल्में हैं, मुझे मन है बहुत देखने का, लेकिन मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं अभी कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ. बट मुझे खुशी है कि ये फेस्टिवल जो है एवरी ईयर इज गोइंग बेटर एंड बेटर. बचपन से किन किन फिल्मों को देखकर आप बड़े पड़े हैं, आप ये बताना चाहें? उनसे पूरी फिल्मों का लिस्ट हूँ मैं बचपन से. किन जो आपकी फेवरेट है? मुगल आजम, शोले, सत्यजीत रे की बाकी फिल्में, सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, हिंदुस्तान में इन डायरेक्टर्स की फिल्में. आपने मुगल आजम का नाम लिया. हम आए थे जब प्रीमियर हो रहा था और आप अंदर देखने गए थे, तो मुगल आजम का जो स्टेज एडेप्टेशन है वो आपको कैसा लगा, कुछ बताइए. क्योंकि मैंने भी देखा, मुझे बहुत देखिए अच्छा मुगल लगा. आजम तो हम स्टेज पे देखो या उसको सिनेमा में देखो, उसका जो पूरा ड्रामा है, जिस तरह से उसको बनाया गया है, जिस तरह से लिखा गया है, जिस समझ के साथ उसमें इतनी लेयर्स है, एक ब्यूटी की और मोहब्बत की और क्लास की और सब स्ट्रगल जो है, और जिस तरह की लाइनें लिखी गई हैं वो अपने आप में एक्सपीरियंस है सुनने के लिए, और उसका कोरियोग्राफी वगैरह जो है बहुत अच्छे से किया है. इरफान, इन्फर्नो ने इस तरह का असर पैदा किया है. जी. जिस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं आपके काम की, अब फिल्म बाकी जगहों पे भी रिलीज़ होने जा रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले 2 वीक पहले ये कई टेरिटरीज में खुली, और अभी तक जो बिज़नेस है वो पहले की फिल्मों से ज़्यादा बहुत अच्छा है. एंड प्रोड्यूसर्स के रोज़ मुझे मेल आते रहते हैं कि नो हाउ इट्स डूइंग वेल एंड वी आर सेलिब्रेटिंग. एंड 28 को ये अमेरिका में और बाकी दूसरी टेरिटरीज में रिलीज़ होगी, एंड वहाँ पिक्चर का वाइब जो है बहुत बढ़िया है, लोगों को मतलब इंतज़ार है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इतनी सारी मीडिया से आज वास्ता आपका हो रहा है, आप टॉम हैंक्स के साथ इस पूरी जर्नी को, या बाकी जिस तरह से आपका इंटरनेशनल करियर उन लोगों के साथ हो रहा है जो वाकई बेहतरीन अपने आप में दिग्गज हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सौभाग्यशाली हूँ और इस तरह का मौका मिलता रहे, और मैं अपनी पूरी जीवन लगा काम करता रहूँगा. जियो मामी फेस्टिवल के अलावा जब आप एक स्टूडेंट के तौर पर सिनेमा देखना जाते थे या वर्ल्ड सिनेमा देख रहे थे, तो क्या मानते हैं कि भारत में जो फिल्म कल्चर है वो जियो मामी किस तरह से आगे लेके जाए? आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन हुआ फिल्म फेस्टिवल से ड्रामा स्कूल के दौरान, एंड फिल्म फेस्टिवल जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम हुआ करता था. हम दिन भर सिनेमा देखते थे, बड़ी मुश्किल से कार्ड बनता था हमारा, और लिस्ट बनाया करते थे कौन कौन सी फिल्में हैं, और वहीं से आई थिंक जो बेसिक एजुकेशन हमारी सिनेमा की हुई है या सिनेमा का एक्सपोजर हुआ है वो फेस्टिवल से हुआ है. और फेस्टिवल जो है एक अपने आप में ऑडियंस के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, अपकमिंग फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल काइंड ऑफ सिनेमा. चलिए, अब आने वाले वक्त में क्या एक सवाल है कि शिवाय आदिल मुश्किल कौन सी फिल्म के लिए आप एक्साइटेड हैं, कौन सी फिल्म देखने के लिए? दोनों फिल्में बहुत मेहनत से बनी हैं, दोनों की फिल्मों का मतलब बड़े बैनर की फिल्में हैं,
और हमारे यहाँ की ऑडियंस जो है बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि 2 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई हैं, दोनों फिल्में कामयाब हुई हैं। तो मेरे को दोनों की शुभकामनाएं हैं। कौन सी फिल्म देख पाऊँगा ये मुझे पता है। आने वाले वक्त में आपके हद से क्या कुछ थैंक यू। थैंक यू सर।